Dear students, myself Dr. Dipti Shrivastava, Associate Professor, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। मैं आज आप लोगों को स्कॉलिडॉन के इंटेगुमेंट या अध्यावरण या स्किन अर्थात त्वचा के बारे में बताऊंगी। The common structural pattern of both aquatic and terrestrial vertebrates of integument is that it is composed of two layers, first epidermis and second dermis. एक्वेटिक तथा टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स दोनों के इंटेगुमेंट में कॉमन स्ट्रक्चरल पैटर्न होता है। सभी वर्टिब्रेट्स की त्वचा दो लेयर्स की बनी होती है, एपिडर्मिस तथा डर्मिस। Epidermis is derived from ectoderm and it is stratified. That is, it is consists of multi layers of cells. Epidermis ectoderm से derived होती है तथा ये stratified होती है, अर्थात ये कोशिकाओं का बहुस्तरीय स्तर होता है। दूसरी लेयर है डर्मिस। इट इज़ डिराइव्ड मेनली फ्रॉम मेसोडर्म and it is formed of connective tissue which contain blood and lymph vessels, nerve and smooth muscle fibers, receptors and also special irregular pigment cells. डर्मिस मेसोडर्म से डिराइव्ड होती है। यह कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जिसमें ब्लड तथा लिम्फ वेसल्स, नर्व तथा स्मूथ मसल फाइबर्स, रिसेप्टर्स तथा स्पेशल इरेगुलर पिगमेंट सेल्स या क्रोमेटोफोर्स होते हैं। बिलो डर्मिस subcutaneous loose connective tissue is present which may consists of fat deposits at certain regions. डर्मिस के नीचे सबक्यूटेनियस लूज कनेक्टिव टिश्यू उपस्थित होता है जिसमें कुछ निश्चित स्थानों पर फैट या वसा जमा हो सकता है। आज हम स्कॉलिडॉन या डॉग फिश के त्वचा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम स्कॉलिडॉन के स्किन का वर्टिकल सेक्शन या ऊर्ध्वाधर काट देख रहे हैं। इसमें हमें पता चल रहा है कि स्किन में दो लेयर्स हैं, एपिडर्मिस तथा डर्मिस। एपिडर्मिस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की कई परतों द्वारा बनी होती है। इसके सबसे भीतर कॉलमनर या पॉलीहेड्रल कोशिकाओं द्वारा स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम का स्तर होता है। यह एक बेसल मेम्ब्रेन पर आधारित रहता है। बाहरी स्तरों की कोशिकाएं ऊपर सतह की ओर जाती हुई चपटी और केराटिनाइज्ड होती जाती हैं। अनेक एपिडर्मल कोशिकाएं विशिष्ट म्यूकस ग्लैंड बनाती हैं जो कि म्यूकस का स्रवण करती हैं। म्यूकस शरीर की सतह को लुब्रिकेट करता है या चिकना बनाने का काम करता है। एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस की लेयर है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसमें अनेक
अरेखित पेशी तंतु, रुधिर केशिकाएं, पिगमेंट सेल्स या क्रोमेटोफोर्स तथा नर्व फाइबर्स होते हैं। इसका बाहरी भाग ढीले या शिथिल तंतुओं द्वारा निर्मित होता है जिसे स्ट्रेटम लग्जम कहते हैं तथा इसका भीतरी भाग कॉम्पैक्ट या सघन तंतुओं से निर्मित होता है जो कि स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम कहलाता है। पिगमेंट सेल्स या क्रोमेटोफोर्स या मिलेनोफोर्स होती हैं जो कि डर्मिस के ठीक नीचे समूहों में स्थित होती हैं। इनकी उपस्थिति के कारण पृष्ठतल की त्वचा अपेक्षाकृत गहरे रंग की तथा स्पॉटेड या चित्तीदार होती है। एपिडर्मिस, ectodermal origin and stratified stratum germinativum, innermost layer of cuboidal cells, rests on basement membrane secreted by epidermis and dermis. Cells of stratum germinativum divide by mitosis, forming new cells adding to above epidermis. Cells of the surface are rubbed off by friction, replaced by new cells. Stratum corneum absent. Horny layer of dead cells absent. Little flattening and keratinization occurs in outer layers. Unicellular mucous glands present. Mucus reduces friction, prevent hold by enemies, settings of organisms, and also controls osmosis. Dermis, mesodermal origin, made of fibrous connective tissue with white collagenous fibers and various cells. Collagen fibers run parallel to surface. Number and compactness varies in different regions of dermis. Stratum lexum, outer dermis, few fibers present. Stratum compactum, inner dermis, compactly arranged fibers. Dermis also contain pigment cells or chromatophores just below the epidermis. Also have blood capillaries, smooth muscle fibers and nerve fibers. Presence of nerve fibers make it sensitive to external stimuli. Functions of skin. Like a wrapper, it protects internal organs against mechanical injuries. Secretion of slimy mucus make body surface slippery and difficult to catch by predators, minimizes friction in locomotion and resists entry of microorganisms into body. Its coloration imparts camouflage as the fish blends with silvery surface of water when seen from below and with the dark bottom when seen from above by predators. Skin receptors help in reacting to changes in the surrounding. त्वचा के कई काम होते हैं, कई कार्य होते हैं। यह एक आवरण के रूप में आंतरिक अंगों की भौतिकी चोटों से सुरक्षा प्रदान करती है। लसलसे श्लेष्मा के स्रवण के कारण शरीर की सतह चिकनी रहती है। इससे परभक्षियों को इसे पकड़ने में कठिनाई आती है। गमन में घर्षण अत्यधिक कम हो जाता है तथा
जीवाणु के शरीर में प्रवेश करने का प्रतिरोध होता है। इसका रंग कैम्यूफ्लेज या एक तरह से आभासी आवरण प्रदान करता है, क्योंकि नीचे से देखने पर चांदी सदृश जल की सतह से तथा ऊपर से देखने पर गहरे रंग की तली से इसका मेल हो जाता है। त्वचा में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप प्रतिक्रिया करने में सहायक होते हैं। स्कॉलिडॉन की त्वचा खुरदरी तथा रेगमाल के सदृश होती है। इसका खुरदरापन इसमें उपस्थित स्केल्स के कारण होता है, जो कि प्लेकॉइड स्केल्स कहलाते हैं। प्लेकॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन स्कॉलिडॉन on almost entire body as exoskeleton। स्कॉलिडॉन की लगभग शरीर की पूरी सतह पर प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, जो कि स्कॉलिडॉन का बाह्य कंकाल बनाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड क्लोज सेट। In contrast to scales of bony fishes, placoid scales stop growing after reaching a certain size। प्लेकॉइड स्केल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये एक दूसरे के समीप अरेंज्ड होते हैं। बोनी फिशेस के स्केल्स के विपरीत प्लेकॉइड स्केल्स एक निश्चित साइज तक बढ़ने के पश्चात वृद्धि में रुक जाते हैं। इनकी वृद्धि रुक जाती है। स्केल प्रोजेक्ट्स आउट रीचिंग अबव द सरफेस ऑफ बॉडी। शरीर की सतह पर पहुंचने पर स्केल्स शरीर से बाहर निकल जाते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं। स्केल्स आर इन डायरेक्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन while in forward direction over claspers। स्केल्स बैकवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड होते हैं, जबकि क्लैस्पर्स में उपस्थित स्केल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। एडिशनली स्केल्स हैव रिबलेट्स ओवर देम which are also directed in flow direction of water। All this results in reduced drag during movement, making swimming efficient as well as silent। Structure of a placoid scale। A typical placoid scale consists of mainly two parts, the basal plate and the flat trident spine। The basal plate is diamond shaped and lies embedded in the dermis and firmly placed by Sharpres and other connective tissue fibers। The basal plate is formed of the trabecular calcified tissue closely allied to the cement। The inner surface of the basal plate bears an opening which leads into the pulp cavity। During life, the pulp cavity is filled with vascular connective tissue called the pulp, containing numerous odontoblasts, dentine forming cells, blood vessels, nerves and lymph channels। The spine is flat and trident and projecting out of the skin and backwardly directed। प्लेकॉइड स्केल की संरचना अगर हम देखें तो स्कॉलिडॉन का एक टिपिकल प्लेकॉइड स्केल दो भागों से मिलकर बनता है। एक बेसल प्लेट जो कि चौड़ी चतुष्कोणीय होती है तथा इसके मध्य से निकला हुआ एक चपटा ट्राइडेंट स्पाइन या त्रिशूल दंत
आधार पट्टिका या बेसल प्लेट, शार्प्रेस तथा अन्य संयोजी ऊतक तंतुओं द्वारा डर्मिस में दृढ़तापूर्वक धंसा रहता है। यह सीमेंट नामक कैल्सिफाइड टिश्यू से निर्मित होता है। त्वचा से बाहर निकला हुआ ट्राइडेंट स्पाइन पीछे की ओर या बैकवर्डली निर्दिष्ट होता है, डायरेक्टेड होता है तथा एक मध्य और दो पार्श्व कंटकों द्वारा निर्मित होता है। वर्टिकल सेक्शन में देखने पर स्पाइन मुख्यतः डेंटाइन नामक कठोर पदार्थ से बना होता है। केंद्रीय या सेंट्रल में पल्प कैविटी होती है जिसमें रुधिर वाहिनियाँ, तंत्रिका तंतु, लसिका वाहिनियाँ तथा डेंटिन उत्पन्न करने वाली ओडेंटोब्लास्ट नामक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। डेंटिन में असंख्य बहुशाखित सूक्ष्म नलिकाएं या कैनालिक्यूली फैली रहती हैं जिनमें ओडेंटोब्लास्ट्स के लंबे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस पाए जाते हैं। स्पाइन के बाहर अपेक्षाकृत कठोर चमकदार इनेमल के समान विट्रोडेंटाइन नामक पदार्थ का आवरण होता है। The surface of the spine is not smooth but presents a stratified appearance under the microscope. The spine is composed of a hard calcareous substance, the dentine. The dentine is traversed by minute, nearly parallel canaliculi with delicate branches containing long protoplasmic processes of odontoblasts. It is coated externally with a layer of hard, shiny enamel-like vitrodentine secreted by amoeboblasts of the overlying ectoderm. The placoid scales are derived partly from the dermis and partly from the epidermis. The basal plate and the dentine of the spine are derived from mesoderm, while the enamel is secreted by the ectoderm. प्लेकॉइड स्केल आंशिक रूप से डर्मिस तथा आंशिक रूप से एपिडर्मिस द्वारा डिराइव्ड होता है। बेसल प्लेट तथा डेंटाइन मेसोडर्म से डिराइव्ड होते हैं जबकि इनेमल एक्टोडर्म द्वारा स्रवित होता है। इस डायग्राम में हम प्लेकॉइड स्केल्स को देख रहे हैं। ए डायग्राम प्लेकॉइड स्केल का डॉर्सल व्यू दिखा रहा है तथा बी डायग्राम उसमें हम वेंट्रल व्यू देख रहे हैं। तो प्लेकॉइड स्केल के दो भाग हैं, बेसल प्लेट तथा स्पाइन। बेसल प्लेट रोम्बॉइडल है यानी कि चौड़ी चतुष्कोणीय है तथा स्पाइन ट्राइडेंट है यानी कि 3 कंटक हैं यहाँ पर, मीडियम स्पाइन तथा 2 लेटरल स्पाइन। वेंट्रल व्यू में हमें पल्प कैविटी की ओपनिंग दिखाई दे रही है। दूसरे डायग्राम में हम प्लेकॉइड स्केल के डेवलपमेंट को देख रहे हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट के दौरान डर्मल सेल्स
एक जगह एक्यूमुलेट हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और डर्मल पैपिला का निर्माण होता है। धीरे धीरे ये डर्मल पैपिला बढ़ता जाता है और ऊपर एपिडर्मिस से बाहर की तरफ निकल जाता है। इसके बाहर की तरफ जो एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो इनेमल की तरह का सब्सटेंस विट्रोडेंटाइन सीक्रेट करती हैं तथा बेसल प्लेट तथा पल्प कैविटी का जो पार्ट है वो मेसोडर्म बनाता है। Development of placoid scale. A group of mesodermal cells of dermis collect in the dermis just beneath the epidermis to form a dermal papilla. The outermost cells of dermal papilla become the odontoblasts. The dermal papilla grows upwards, pushing the epidermis. Then it takes the shape of a basal plate and spine. The odontoblasts secrete dentine all around, forming the basal plate and spine of the placoid scale. The dentine of the basal plate becomes calcified. एपिडर्मिस के ठीक नीचे डर्मिस की कुछ मेसोडर्मल कोशिकाएं एकत्रित होकर एक डर्मल पैपिला का निर्माण करती हैं। डर्मल पैपिला की सबसे बाहर की तरफ की कोशिकाएं ओडेंटोब्लास्ट्स बनकर अपने तथा एपिडर्मिस के बीच में डेंटिन डिपॉजिट करने लगती हैं। इसी बीच ऊपर स्थित स्ट्रेटम मेलपिगियम या मेलपिगियन लेयर की एपिडर्मल कोशिकाएं जो अब इनेमल या एमिलोब्लास्ट्स कहलाती हैं, ये इनेमल ऑर्गन बनाती हैं जो डेंटिन के ऊपर विट्रोडेंटिन जमा करता है। बेसल प्लेट का निर्माण डर्मिस की आसपास की कोशिकाओं द्वारा होता है। परिवर्धनशील स्केल में डर्मल पैपिला द्वारा पल्प गुहा के अंदर न्यूट्रेटिव पल्प बनता है। पूर्ण वृद्धि प्राप्त स्केल में ऊपर स्थित एपिडर्मिस के घिस जाने से स्पाइन त्वचा से बाहर निकल जाता है, जबकि बेसल प्लेट डर्मिस के अंदर अंतःस्थापित रहती है या धसी रहती है। The Malpighian layer of the epidermis overlying the dermal papilla is now called the ameloblasts, form the enamel organ, which form the vitrodentine over the dentine of the spine. The dermal papilla in a growing scale forms pulp in the pulp cavity of the scale. The overlying epidermis moves away and also wears off so that the spine projects above while the basal plate remains embedded in the dermis. Homology of placoid scale. Placoid scales are the forerunners of vertebrate teeth because the two have essentially the same form, structure and embryonic development. The gradation from placoid scales to teeth is seen in the mouth of a shark. Shark teeth are enlarged placoid scales formed in the skin of jaws and are thus homologous with placoid scales. प्लेकोइड शल्कों की समजातता या होमोलॉजी। प्लेकोइड स्केल कशेरुकियों के दांतों के अग्रज माने जाते हैं, फॉर रनर्स या अग्रज माने जाते हैं।
दोनों का मूलतः समान आकार, संरचना और भ्रूणीय परिवर्धन इन्हें समजात संरचनाओं को बताता है। स्केलेटन में दांत मात्र विशिष्ट प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। जबड़े के ऊपर से होकर मुख के अंदर तक फैली त्वचा के प्लेकोइड स्केल दांत का कार्य करने के लिए विशेष रूप से बड़े हो जाते हैं। अपने पष्ट कंटकों के कारण ये शिकार को पकड़ने तथा फाड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मुख का आंतरिक स्तर त्वचा की ओर मुड़ी त्वचा द्वारा बनने से इसमें विकसित दांत भी त्वचा के डेरिवेटिव्स हैं और प्लेकोइड स्केल के समजातीय होते हैं। बट देयर आर ऑब्जेक्शंस टू दिस supposition, and a more recent view is that both placoid scales and teeth are modified remnants of the bony dermal plates found in the ancestral ostracoderms and placoderms, so that teeth and placoid scales are homologous structures. Moreover, it has been shown that there is no epidermal enamel layer in placoid scales, but it is a layer of vitrodentine formed by mesodermal cells. अधिक रिसेंट व्यू के अनुसार प्लेकोइड स्केल्स और टीथ बोनी डर्मल प्लेट्स जो कि एंसेस्ट्रल ऑस्ट्रेकोडर्म्स तथा प्लेकोडर्म्स में पाई जाती थी, उनके मॉडिफाइड या रूपांतरित रेमनेंट्स या अवशेष हैं। सो दैट टीथ एंड प्लेकोइड स्केल्स आर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। इस प्रकार दांत और प्लेकोइड स्केल्स समजात संरचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त प्लेकोइड स्केल्स में एपिडर्मल इनेमल लेयर नहीं होती, बल्कि विट्रोडेंटाइन मेसोडर्मल सेल्स द्वारा ही बनाया जाता है। In this diagram we can see the section of lower jaw showing formation and replacement of teeth from placoid scale. Enamel is the hardest substance in the body, whereas vitrodentine is only a hardened outer layer of dentine. The enamel organ does not secrete enamel, it only plays a role in shaping the spine, so that the entire placoid scale is mesodermal like the scales of bony fishes, whereas a tooth has an enamel covering derived from ectoderm. The claim that a graduation from placoid scale to teeth is observed in the mouth of shark is interpreted as a divergence shown between vitrodentine covered placoid scales on the one hand and the enamel covered teeth on the other. पूर्व धारणा के अनुसार प्लेकोइड स्केल एक संयुक्त संरचना है जिसकी उत्पत्ति दो स्रोतों से हुई है, बेसल प्लेट तथा डेंटाइन की उपस्थिति मेसोडर्म से, जबकि विट्रोडेंटाइन की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। परंतु अब इस धारणा को समर्थन प्राप्त नहीं है। दांत के ऊपर एक्टोडर्मल इनेमल का आवरण होता है, परंतु प्लेकोइड स्केल में यह अनुपस्थित होता है। इसके स्थान पर मेसोडर्मल सेल्स द्वारा निर्मित विट्रोडेंटाइन पाया जाता है। इस प्रकार प्लेकोइड स्केल को बोनी फिशेस के स्केल्स की भांति पूर्णतः
मीजोडर्मल माना जाता है। तो ये माना जाता था, पहले ये कहा जाता था कि इनेमल जो है वो विट्रोडेंटाइन और इनेमल जो है वो एक जैसे हैं तथा ये हार्डेस्ट सब्सटेंस हैं जो कि एक्टोडर्म द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। लेकिन अब ये माना जाता है कि विट्रोडेंटाइन मीजोडर्म द्वारा बनाया जाता है, जबकि दांत में यह इनेमल एक्टोडर्म द्वारा बनाया जाता है। एक्टोडर्म इनेमल को सीक्रेट करती है। तो इस प्रकार प्लेकोइड स्केल पूर्णतः मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। तो आज हमने स्कॉलिडॉन के इंटेगुमेंट के बारे में पढ़ा। उसमें उपस्थित प्लेकोइड स्केल्स की संरचना तथा उसकी उत्पत्ति किस तरह से होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। थैंक यू।